Jai Guruji, auntie, are you there? Yeah. Jai Guruji. Jai Guruji, Sangas ji. Today is 14th day of our reading, Dawn of Reality. और गुरुजी की आज्ञा से हम आज की शुरुआत करते हैं. उस दिन हमने यहाँ पर छोड़ा था. We read how Neelu couldn't look directly into Baba's eyes, as he would always look at Baba's feet or his knees, because he was, he used to be filled with so much of respect and so much of, he would be so much in gratitude for his master. कि उनमें हिम्मत ही नहीं होती थी, वो प्यार इतना होता था that he would not look beyond his feet or his knees. Here Baba told Neelu that obeying his order was the main work, as by doing that he was sharing his work. And then Baba told all of them that by every time rising after falling, you all are reducing my burden. Or Baba ne ye bhi kaha, Baba said, leave all worries to me and I'll help in everything. फिर हमने पढ़ा Baba's messages were that life ends, but life experiences and lessons do not. He said, I never go and never come. I have never left this world, and people see me in stones and non-living things due to imaginary limitations, duality and confusion. But I'm eternally present for those, who have the vision to see me. So Baba ne aage ye bhi kaha, I'm the life in your living, I'm the beginning, I'm the end, and I'm in the between. Then we read Baba said reality is being aware of the things that its nature doesn't change, and it's constantly over there. So everything of this universe and all the universes is born out of nothingness. Then we read about love. तो उसी से हम आज कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उस टाइम हम आगे नहीं पढ़ पाए थे. अभी हम आगे पढ़ेंगे रियलिटी ऑफ लव. सो बाबा कहते हैं ये जो कन्वर्सेशंस हो रही थी अबाउट लव, उसमें बाबा क्या बोलते हैं. Before we started, he said, remember the questions you will ask are also mine and answers are also mine. बाबा कहते जो भी तुम मेरे से प्रश्न पूछोगे, ये सब प्रश्न भी मेरे हैं, ये उत्तर भी मेरे हैं. And you are only documenting this as an instrument. आप सिर्फ माध्यम हो. आगे है why does one feel unloved? बाबा कहते हैं love is eternal, it flows like a river. The flow of a river cannot be stopped. Similarly, love cannot be limited and imprisoned. When freedom is curtailed, one feels suffocated and love becomes a punishment. So love has to flow freely and be allowed to take twists and turns, fall like a waterfall, travel through a forest, become a mighty river, and finally merge with the ocean. तो यही है, उन्होंने उदाहरण दिया. ये तो एक नदी की तरह बहती रहती है, नदी का बहाव रोका नहीं जा सकता. इसी तरह प्यार भी लिमिटेड नहीं है, इसको बांध के नहीं रख सकते. क्योंकि जब हम किसी चीज की फ्रीडम को खत्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो क्या होगा. ऑब्वियसली वन टेंड्स टू फील सफोकेटेड, और फिर वो एक तरह का बोझ और पनिशमेंट लगेगा. सो लव हैज टू फ्लो फ्रीली एंड बी अलाउड टू टेक ट्विस्ट एंड टर्न्स, और फिर उस तरह से वो वाटरफॉल भी बनता है, जंगलों से होता हुआ माइटी रिवर में मिल जाता है, और फिर फाइनली क्या होता है, मर्ज विद द ओशन. तो यही हमारी आत्मिक जर्नी भी है. until we merge with the supreme soul, it goes and travels through aeons and aeons, और पता नहीं क्या क्या किस किस जन्मों में कहाँ से होके आती है, और फिर क्या होती है, फाइनली इट merges with the supreme soul. तो वही एक रियल एसेंस है जिसके लिए आत्मा दोबारा से आती है. उसके बाद हम पढ़ेंगे ये eternal love is never incomplete and doesn't feel the need to be expressed or acknowledged. Love is just there like everything else in the universe, and it is unconditional. It is the same irrespective of what one does or doesn't do. तो जो eternal love होता है ना, वो किसी चीज का मोहताज तो होता ही नहीं है. तो प्यार is the biggest source, biggest power in the universe, provided if it's unconditional. So
It is the same irrespective of what one does or doesn't do. People feel a lack of love in life because their heart is blocked. आपको प्यार इसलिए नहीं महसूस होता क्योंकि आपके अपनी कमियां होती हैं, आपका अपना हृदय ब्लॉक होता है. The heart is blocked due to various thoughts and beliefs embedded in the human mind. These thoughts put conditions on the mind to listen selectively to the heart. Each time a wave of love is released by the heart, the mind rejects it for want of logic. Love is illogical, and no one explains the love one experiences at the deepest core, as one always falls short of words. देखो, प्यार को किसी चीज से बांधा नहीं जा सकता. प्यार से क्या होता है, जो मन है ना, it always wants the logic, and but love is illogical. तो माइंड रिजेक्ट कर देता है उस तरह की जो थॉट्स प्यार वाली आती हैं. ये डायरेक्टली एनीथिंग कम्स फ्रॉम द हार्ट, बट लव इज इलॉजिकल. And you can't explain love no matter what. इसको experience ही किया जा सकता है. Love has to be felt. That is what love is all about. Its real essence is that you can only feel it. You can't depict it in some words. Even if you try to, you'll fall short of words. So आगे बोलते हैं. However, glimpses of such unconditional love make one thirsty for more. और अगर आपको इस तरह की प्यार की जो भी छोटी छोटी झलकियां दिखाई दिए, तो आपकी वो जो थर्स्ट है ना, it would just crave for more and more and more. So one tries to replicate such experiences, and since no experience can be repeated at the same level of intensity, one feels restless and unhappy. तो कई बार क्या होता है, वो उस तरह के experiences आप दोहराना चाहते हैं. अगर उस तरह की आपको intensity same level नहीं मिलता है, तो फिर आप अंदर से restless और आप नाखुश होते हैं. Love has many forms and colors, and there are several ways to experience it. Since each of us relates to it differently and expects a certain response, the other ways of expression that we do not understand are not considered love. तो प्यार की तो परिभाषा यही है ना, उसके बहुत फॉर्म्स होते हैं, कितने रंग होते हैं, और बहुत तरह तरह के तरीकों से हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. और उसके बाद है, for example, if a father tries to stop his son from risking his life by indulging in dubious activities, the son may consider the father to be unloving. तो प्यार की परिभाषा अलग अलग है. प्यार हर डिफरेंट फॉर्म्स में आता है. कहते वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, कहते एक पिता है जो अपने बेटे को रोक रहा है, उसके बेहतरी के लिए रोक रहा है, because he doesn't want that his son should risk his life by indulging in some kind of nefarious or dubious activities. तो बच्चा क्या सोचेगा, नहीं मेरा पिता मुझे प्यार नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे रोक रहा है. At the same time, if the father fulfills all his wishes, the son may consider him to be very understanding. On the other hand, अगर वही पिता उनकी आशाएं, उनकी डिजायर्स पूरी करे, तो वो सोचेगा कि नहीं मेरे पिता प्यार करता है. The son's view of love is limited to the fulfillment of his wishes by the father. तो ये किस तरह का प्यार है? ये कंडीशनल प्यार है. दुनिया में भी कंडीशनल प्यार देखने को मिलता है. अगर कोई डिजायर्स फुलफिल हो जाए तो हम सोचते हैं वो हमें प्यार करते हैं. अगर नहीं हमारी होती है तो हम सोचते हैं हम नहीं प्यार करते हैं. यही हमारे परमात्मा के साथ भी होता है. हम सोचते हैं हमारे गुरुजी, हमारे परमात्मा, हमारे मास्टर जहां तक हमारी विशेस को फुलफिल करें, then he is loving. But if he doesn't fulfill our wishes, then we, kind of have the dubious feeling, for a master. But that is very, very, conditional love. It is based on the desires and your wishes. So you can't say that it is true love. So one seeks to receive and give love according to one's own mindset. तो आप अपने मन की अवस्था के मुताबिक ही आप सोचते हो कि जिस तरह का प्यार की परिभाषा आप देते हैं. It's on your mindset. Any other form of love is not considered to be love. This happens when love is approached through the mind, which is capable of setting up filters according to the experience and exposure. तो मन तो ऐसा ही है, अपने आप से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से फिल्टरेशन कर लेता है जिस तरह के एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिलता है. दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन माइंड. तो यही तो है सीमित परिभाषा जो ह्यूमन माइंड की है प्यार को लेके. उसके बाद हम पढ़ते हैं, unless the mind merges with a universal mind, one can never experience and accept the love that is continuously bestowed upon us. जब तक ये मन यूनिवर्सल माइंड के साथ मर्ज ना हो जाए, तो आप उस तरह का रियल लव एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं जिसका बहाव कंटिन्यूसली हमारे ऊपर है. To become the universal mind, one has to expand one's consciousness till such a time when one begins to respond effortlessly through the universal
यूनिवर्सल माइंड। तो यूनिवर्सल माइंड बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक्सपैंड करना पड़ता है, वो दायरा बढ़ाना पड़ता है अपनी कॉन्शियसनेस का। जब तक हम उस तरह से सहज भाव से रिस्पॉन्ड ना कर सकें थ्रू द यूनिवर्सल माइंड। यूनिवर्सल माइंड कब होता है? जब आपकी आत्मा और आगे बढ़ती रहती है उस एक्सपीरियंस को लेके, और आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है। आपके जब मास्टर का आप पे मेहर हो जाती है, उससे भी आपकी कॉन्शियसनेस बहुत बहुत बढ़ती है, फिर आपका रिस्पॉन्ड डिफरेंट होने लगता है। इन माय यूनिवर्सल मैसेज आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट रियल लव वुड डू टू ह्यूमैनिटी व्हेन एनीवन विल बी इनगल्फ्ड इन वननेस। तो कहते हैं मेरा तो यूनिवर्सल मैसेज है, मेहर बाबा जी कहते हैं, मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि जो सच्चा प्यार है वो क्या करेगा अगर हम उस तरह की चीजों से भर जाए, if we encompass or engulf ourselves with that oneness, the feeling of oneness, the wave of love released by me in various forms and through the avataric periods is being felt now. कहते वो जो बहाव है ना प्यार का, जो मेरी कृपा के साथ बह रहा है, अलग अलग फॉर्म्स के साथ, ये जो मैंने अवतार लिया है वो महसूस हो रहा है। People have begun to question their own experience of love and are seeking a deeper meaning to it. तो उसके प्रभाव से क्या है, अब इंसान जानने लगा है, वो उस तरह के क्वेश्चन भी करता है। People have begun to question their own experience of love, जिस तरह से वो प्यार एक्सपीरियंस करते हैं, और वो उसका गहराई से मतलब भी ढूंढते हैं। Unless one falls in love with God, real love cannot be experienced at the core. वो तो है ही है. If our experience, we have experienced the love of human beings or anything for that matter, maybe the materialistic things as well. पर कहते जो सच्ची परिभाषा है प्यार की, आप नहीं जान सकते जब तक आपका प्यार उस लेवल का परमात्मा के साथ ना हो जाए, because that's a real love. उसमें तो कोई conditions ही नहीं है, unconditional love. And our Guruji has depicted, what is love all about. It's all about giving, and it's all about taking pain and the sacrifices. यही तो है असली प्यार। उसमें आप expectations नहीं रखते हैं, उसमें सिर्फ देते रहते हैं, और आप तहे दिल से प्यार करते हैं। वो परमात्मा ही आपको दे सकता है, या फिर आपका अगर परमात्मा के साथ उस तरह का प्यार बढ़ जाए। It is like a treasure hidden in the ocean. तो वो उस खजाने की तरह है जो इस ओशन के बीच में छुपा हुआ है। One needs to take the risk of drowning to reach it. So it's not easy if you want to really explore, if you want to experience that real nature of love. तो आपको फिर वो थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, वो उस गहराई में जाना पड़ेगा ओशन में, if you want to really feel that real feeling of love. I'm available to everyone equally without any limitation and discrimination. तो क्या कहते हैं मेहर बाबा जी, मैं तो हर एक के लिए हूँ और इक्वली हूँ, जिसमें कोई बंधन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। God is always available for everyone. That Guruji is available for everyone. That's why he said direct connection. He never said this to few people. This was a universal message for everyone. God is always available for everyone. It is you who have limited yourself from listening and reaching out to me. अरे अगर कमी है तो तुम में है, जो तुमने अपना दायरा छोटा कर लिया है, अपने आप को लिमिट कर दिया है मेरे तक पहुंचने से। You listen to all the noises in the world but lose me and my voice in your heart. कहते तुम दुनियावी चीजें तो सब सुनते हो, पर जो मैं तुम्हारे हृदय में बोल रहा हूं, जो मेरी आवाज है, वो तुम नहीं सुनते हो, बिकॉज तुम उस तरह से तुमने अपने आप को बस दुनियावी चीजों में लगाया हुआ है। दिस इज व्हाट इट ऑल मीन्स, कि आप इतना दुनियावी चीजों में धसे हुए हो कि जो परमात्मा तुम्हारे अंदर विराजमान है, तुम्हारे हृदय में बैठा है, उसकी आवाज तुम नहीं सुन रहे हो। ये तुम्हारी अपनी लिमिटेशंस है। So you hear all the commotion, all the din, all the noises in the world. When all the noises have quieted and there is clarity and peace in you, you will hear me loud and clear like you would never have before. तो इस तरह की जब आवाजें को बंद करोगे, क्लैरिटी नजर आएगी, उस तरह की शांति मिलेगी, तुम मेरी आवाज को जोर से सुन पाओगे जिस तरह से तुमने पहले नहीं सुना होगा। तो ये कैसे होगा? When we are filled with love, when we go inward and we really spend time alone. If you're always into this materialism, you're always into आपका ये जो दायरा है सिर्फ बाहर की तरफ है, you're looking just outside, inward जाने की बजाय, तो वो फिर उसके
फिर कैसे सुन पाओगे? सो कहते अगर तुम उस तरह के बन जाओगे तो तुम इस तरह से आवाज सुनोगे जिस तरह से तुम्हें कभी नहीं सुनी होगी। आई एम द इटर्नल ट्रूथ दैट विच कैनॉट बी कवर्ड और हिडन। तो मेहर बाबा जी कहते हैं मैं ही तो हूँ वो इटर्नल ट्रूथ। आप ये लाइट सबकी एक समान होती है, जितने भी अवतार हुए होते हैं लाइट एक समान है, वही इटर्नल ट्रूथ है। और उसको हिडन, उसको इट कैन नॉट बी कवर्ड और हिडन। आप उसको कवर नहीं कर सकते हैं, उसको हाइड नहीं कर सकते हैं, आप उसको छुपा नहीं सकते हैं। उसके बाद है one who falls in love with me goes through an intense experience of purification। जिसका सच्चा प्यार प्योरिटी वाला मेरे से पड़ जाए ना तो फिर आसान नहीं है, इंटेंस एक्सपीरियंसेस लेने पड़ते हैं। किस चीज के लिए? अपने आप को शुद्ध करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए। one who falls in love with me goes through an intense experience of purification and becomes like me as only alikes can be merged। तो एक जैसी चीजें ही मर्ज होगी ना, जिसमें कहते हैं ना ईश्वर हम में समा जाए या हम ईश्वर में समा जाए, एक समान हो जाए, तो फिर कोई भेद नहीं रहता है। फिर मेहर बाबा जी कहते हैं तो फिर तुम एक्सपीरियंस कर पाओगे वो डिवाइन लव को, जिसमें कोई भी भेद नहीं रह पाएगा। Okay, one who falls in love with me through an intense experience of purification and becomes like me as only alikes can be merged। One goes through intense suffering to know the self। अपने आप को जानने के लिए एक बहुत ज्यादा सफरिंग को देखना पड़ता है, सहना पड़ता है। And to ultimately realize me। तो जब मुझे रियलाइज करने से पहले इन चीजों से निकलना पड़ेगा। मेहर बाबा जी ने हर बारी सफरिंग पे बहुत बहुत जोर दिया है कि सफरिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये तो हमें पता ही है कि साईं बाबा जी भी कहते हैं द सफरिंग ईच पर्सन इज गोइंग थ्रू हैज बीन अग्रीड अपॉन बाय द इंडिविजुअल्स व्हेन प्लानिंग हिज और हर न्यू लाइफ ऑन अर्थ to clear as much as to clear as much karmic debt or as possible, enabling the soul to move closer to the light। वो तो ये भी सफरिंग है ना। हम पहले भी हम आके हमने अपना डिजाइन किया होता प्लान कि कोई बात नहीं, बिकॉज हमारा मेन मकसद के लाइट की तरफ और बढ़ना। तो लाइट की तरफ आप ऐसे आसानी से नहीं बढ़ सकते, बहुत सफरिंग्स से निकलना पड़ता है। और ये जो अपने कार्मिक डेट्स है वो हमें पहले पूरे करने पड़ते हैं। वी ऑल नो दैट कर्मा एंड डेस्टिनी आर वेरी हार्ड टास्क मास्टर्स, ये किसी को नहीं छोड़ती हैं। तो बट ये भी है कहते कर्मा डोंट टेक कर्मा एज अ पनिशमेंट बिकॉज इट्स अ लर्निंग। ये तो लॉ है, इट्स अ लॉ दैट इज नॉट intended to blindly punish but to teach you where you went wrong and to make you understand your mistake from a soul level। तो ये बहुत जरूरी है उस चीजों से गुजरना। तो कहते हैं one who falls in love with me goes through an intense experience of purification and becomes like me as only alikes can be merged। One goes through intense suffering to know the self and to ultimately realize me। One who has realized me never feels a lack of love thereafter in life। फिर बाद में आपको कोई कमी नहीं रहती प्यार की, जो अंदर से जान लेते हैं। Any effort to find real love or to feel satisfied with each other in human form or any other form is not possible unless one has united in love from within। जब तक आप अंदर से यूनाइटेड ना हो जाए प्यार में, तब तक आप नहीं जान सकते, बिल्कुल भी नहीं जान सकते। Everyone has some shortcomings, so that's inevitable। Everyone has some shortcomings, कमियां तो सब में होती है। And no human is perfect in the world, all are fallible beings, to where is human। तो वो तो है ही है, इंसान गलतियों का पुतला है, सब में शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, कोई भी परफेक्ट तो नहीं होता, ओनली गॉड इज परफेक्ट। हाउएवर द इंटेलिजेंट माइंड ऑलवेज सीक्स परफेक्शन। पर जिसको थोड़ा सा वो उस तरह की समझ आ जाती है, वो परफेक्शन की तरफ जाना चाहता है। बिटवीन द टू, इवन दो लव एंड हैप्पीनेस आर एक्सपीरियंस इन सम मोमेंट, विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड सिचुएशन अ चेंज इन लव इज एक्सपीरियंस। सो धीरे धीरे विद द एक्सपीरियंसेस, जिस तरह के भी पल आते हैं उस तरह का बदलाव आता है प्यार में। दिस कॉजेज डीप डिसअपॉइंटमेंट। तो उससे क्या होती है? डिसअपॉइंटमेंट भी हमें मिलती है। अगर उस तरह सा विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड सिचुएशन अगर प्यार में थोड़ा सा वो चेंज आ जाए तो क्या होगा? इंसान को डिसअपॉइंटमेंट लगती है। दिस इज स्पेशली ट्रू इन मैसेजेस। अभी क्या होता है, शुरू में बंदा सोचता है हर एक ये होता है, सी लव इज ऑलवेज चेंजिंग, यू कांट से दैट लव वुड ऑलवेज बी देयर। सिर्फ एक ईश्वर का, परमात्मा का प्यार है जो स्थिर रहता है, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता। हमने बहुत बारी देखा है कि इंसान के प्यार में या रिश्ते नातों के प्यार में उस तरह का बदलाव आने लगता है। तो that is okay, that is inevitable, पर यही जाना है, ईश्वर के प्यार में कोई भी बदलाव नहीं आता है।
इसमें यही लिखा है, अब एग्जांपल देते कहते दिस इज स्पेशली ट्रू इन मैरिजेस एज एवरीवन थिंक्स दे आर गोइंग टू फाइंड द अल्टीमेट लव ऑफ देयर लाइफ इन देयर पार्टनर। कहते उदाहरण के तौर पे शादी को ही देख लो, हर एक को होता है मुझे वो अल्टीमेट लव मिलने वाला है, बस ये तो दिस लव इज गोइंग टू बी फॉरएवर, तो इस तरह का प्यार मुझे बस ये हमेशा से रहेगा। पर कहते ऐसा होता नहीं है। They soon realize this is not true and they experience the love turning bland and boring. तो शुरू में जिस तरह की हर एक के अपने ड्रीम्स होते हैं, तो it's because no marriage is ideal, you know, सिर्फ maybe it just happens in you know fiction or you know some movies for that matter. But वो कहते हैं बदलाव तो आता है। They soon realize, शुरू में वो सोचते हैं कि नहीं बस मुझे अल्टीमेट प्यार मिलने वाला है मेरे पार्टनर के साथ, and soon they realize this is not true and they experience that their love is turning bland and boring, and with the passage of time you know their hopes are dashed to the ground. उनको लगता है कि नहीं अब तो क्या कोई कमी आ रही है, it's insipid, it's bland, it's boring, so they accept that this is the only love they can get in this lifetime, one with a pinch of pain and disappointment. तो फिर वो accept करते हैं कि यही प्यार है जो इसको इनको इस लाइफ टाइम में मिल सकता है, one with a pinch of pain and disappointment. They imprison themselves with their partner for the rest of their lives and try to put up with each other's shortcomings. तो क्या होता है, अपने आप को उस बंधन में बांध के रखना पड़ता है और फिर उनको सहना भी पड़ता है एक दूसरों की कमियों को। On the other hand, this opportunity can be used for mutual growth. कहते बजाय कि आप एक दूसरे की शॉर्ट कमिंग्स देखो, एक दूसरे को बर्दाश्त करते हो, तो उस तरह की मैरिज का कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है कि दो मैरिजेस आइडियल, वो कमियां होती हैं, एक दूसरे को एंड्योर भी करना पड़ता है। कहते पर अगर आप ये जान लो ना कि आप ये जो चीजें हैं, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अपनी ग्रोथ के लिए यूज करो ना, म्यूचुअल ग्रोथ के लिए, ऑन द अदर हैंड दिस अपॉर्चुनिटी कैन बी यूज्ड फॉर म्यूचुअल ग्रोथ इफ बोथ द पार्टनर्स हेल्प ईच अदर टू अंडरस्टैंड द डीपर एस्पेक्ट्स ऑफ लव। अपनी परसेप्शन चेंज करो, इस चीज को अपॉर्चुनिटी एक यूज करो, मतलब आप दोनों मिलके अपनी ग्रोथ, यू नो, यू कैन एनलाइटन योरसेल्फ, म्यूचुअल ग्रोथ कर सकते हो, बोथ द पार्टनर्स एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके, you know, that is the deepest core, deeper, you know, and you go deeper because that signifies deepest core of love. That is the genuine love, you know, rather than putting up with each other's shortcomings. Just, you know, become one. Even husband wife may, there should be feeling of oneness. So वो एक और एक 11 हो जाते हैं. If they can do this by giving each other the freedom to express, वो कब होगा? Rather than dominating each other, rather than, you know, imposing some things. कहते हैं एक दूसरे को फ्रीडम दो एक्सप्रेस करने की, एक्सेप्ट करने की, एंड ग्रो इन लव। साथ साथ बढ़ो, ग्रो करो लव में। then marriage becomes the best institution that can help both to evolve spirituality. कहते फिर बात बने, फिर marriage it's like a blessing। फिर एक because this is marriage, हमें सबको पता, हमने शिव पुराण में पढ़ा था कि ये पहला विवाह शिव जी का हुआ था पार्वती जी के साथ। so it's a sacred institution। पर अगर दोनों एक दूसरे को समझें और दोनों इकट्ठे इवॉल्व हो स्पिरिचुअली, देन नथिंग लाइक दैट, देन इट्स लाइक चेरी ऑन द केक। देन फिर आप, शादी आपके लिए एक बोझ नहीं है, पर उसके लिए क्या है, एक दूसरे को एक्सप्रेशन देना पड़ेगा, बोलने का स्पेस देनी पड़ेगी, एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि जैसा आप चाहते हैं सब कुछ आपको वैसा मिले, कोई भी आइडियल पार्टनर नहीं होता है। इन द मैरिज उसी चीज से स्थिर होती है, व्हेन यू लेट ईच अदर ग्रो, यू गिव ईच अदर स्पेस एंड यू डोंट इम्पोज थिंग्स, बिकॉज एवरीबडी हैज देयर ओन चॉइसेस एंड डिजायर्स। सो जरूरी नहीं है कि जो आप जैसा कहें वो वैसा ही हो, पपेट बन के वैसे रहें, तो एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। यू कैन हैव द डिफरेंसेस येट यू कैन बी टुगेदर। सो इट्स उस तरह से ये मैरिज का कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरती से समझाया है इसमें। और ओके या सो आगे हम बढ़ते हैं, उसमें यही है, yeah. On the other hand, the opportunity can be used for mutual growth if both the partners help each other to understand the deeper aspects of love. If they can do this by giving each other the freedom to accept and grow in love, then marriage becomes the best institution that can help both to evolve spiritually. फिर उसके जैसी बात ही नहीं है, फिर तो इकट्ठे होके इतना जल्दी आप evolve हो सकते हो spiritually. But people often differentiate spirituality from life. पर वो क्या करते हैं ना, differentiate करने लग जाते हैं, spirituality को निकाल देते हैं लाइफ में से, मतलब उसको
अपने हिसाब से डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं and use spirituality as an escape from everyday problems. Get this, rather than making spirituality an escape, why don't you make it part and parcel of life? तो spirituality क्या है? आप उस चीज को एक reality से भागने के लिए एक जरिया सा बना लेते हो, as an escape from everyday problems. This doesn't really help and instead further complicates matter. कहते इसका फिर ये कोई मदद थोड़ी करेगा, rather ये आपको और फंसाएगा, complicate करेगा. So why do you differentiate spirituality from life? Because it is the real essence of life, actually. They become the cause of each other's unhappiness and knowingly spend their whole lives due to social and economic pressures and arguments and disagreements that cause rift and unhappiness. फिर वो क्या होता है? कहते हैं ऐसी चीजें जब करोगे ना, एक दूसरे से दूर भागोगे, स्पिरिचुअलिटी को रीजन बना लोगे, कहते फिर क्या होगा? तो ये रीजन बनेगा, दोनों ही खुश नहीं रह पाएंगे और फिर जबरदस्ती का वो हो जाता है जीना कि नहीं जी, समाज क्या बोलेगा, इकोनॉमिक प्रेशर्स के कारण फिर लाइफ किसमें आप बिता देते हो? आर्ग्यूमेंट्स करने में, डिसएग्रीमेंट्स करने में, और उससे क्या होगा? एज अ रिजल्ट कॉन्सिक्वेंटली इट विल कॉज रिफ्ट एंड द स्क्वबल एंड द डिसहार्मनी एंड द अनहैप्पीनेस. सो यही है बेसिकली, इसमें तो यही समझाया है, जितना का इसमें समझ लगा है कि जो शादी है, make it an opportunity for each other to go spiritually together. And how it can happen. Everybody's desire and thoughts or level is different, so give each other space and grow in love. Ikatte grow in love, and then give freedom to express. हर एक की बात अगर हम freedom to express करते हैं तो फिर उस हिसाब से तो हमें वो शक्ति भी रखनी चाहिए सुनने की कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए हर एक बंदा things are coming from their level of perception. The way we think, not necessarily other person is also on the same level. चाहे वो husband wife ही क्यों ना हो, हर एक की अपनी you are husband wife, but individually you are souls. So probably जो भी अपना लेना देना है उसके लिए आए हूँ, या कोई भी रीजन हो सकता है इकट्ठे होने का, पर it's a sacred institution. उसकी सेंसिटिविटी रखनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए और एक दूसरे को फ्रीडम देनी चाहिए. ये नहीं है कि सिर्फ हम अपनी बात सुनाएं, किसी उसकी दूसरे पार्टनर की ना सुने. So उस तरह से शादियां सर्वाइव नहीं करती हैं. It you have to go through a lot of things. There's a lot of patience and compromise and freedom of thought, freedom of speech, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व करता है. When there is freedom of expression, there is mutual acceptance and trust. जब freedom of expression होता है ना, फिर mutual इकट्ठे वो acceptance भी आ जाती है, trust भी आ जाता है. Self-love is actually not love for the body or the things in life. Self-love is discovered when one is in love with the purest form of love and experiences unlimited compassion and unconditional acceptance. कहते self-love क्या है? ये सिर्फ एक आपके शरीर तक ही उसका वो दायरा नहीं है. Self-love तब it's the purest form of love तब होता है जब आप अनलिमिटेड कंपैशन से भर जाते हैं और अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस आ जाती है. ये है, that is a true definition of love. Love is not only about fulfilling your thing, but in that it holds unlimited compassion. जब आप में वो empathy आ जाती है, दया की भावना आ जाती है, unconditional acceptance भी आ जाता है. This heals all past and present hurts and makes one feel worthy of existence. फिर वो जो भी past और present के जो भी घाव होते हैं उसको भर देता है. Such a pure form of love can be experienced only by grace and has to be earned by constant intense longing and seeking union with the beloved. तो कहते हैं ये प्योर फॉर्म ऑफ लव कब एक्सपीरियंस होता है? जब मेहर हो जाए, रब की मेहर हो जाए, परमात्मा की मेहर हो जाए, और ये अर्न किया जाता है जब आप लगे रहते हैं, आपके अंदर तीव्र इंटेंस क्रेविंग लॉन्गिंग होती है कि नहीं, मुझे अपने परमात्मा के साथ, मेरे अपने बिलवड के साथ, मेरे को I have to be united. My soul has to be united with the supreme soul. वो तब होता है जब आपकी longing बहुत intense होती है. And such love is fulfilling and complete because it never looks for anything outside. और ये प्यार है जो आपको पूरी gratification देता है. क्यों? क्योंकि फिर आप बाहर की चीजों पे निर्भर नहीं करते. It comes from within. The real love comes from within, and it wants nothing, just love. So love doesn't need anything. Just love, just love. और कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि बाकियों को ये मिल गया और मुझे क्या मिल गया. तो कहते हैं बेशक हो गया शाहवो मैं अलमस्त फकीर, बेशक हो गया शाहवो मैं अलमस्त फकीर, उनके साथ कुबेर है मेरे साथ कबीर. तो
अगर बाकियों की जिंदगी में कुछ और चीजें हैं, आप मत भूलिए आपके साथ कौन है। गॉड इज विद यू, योर गुरु इज विद यू। तो बेशक हो गया शावो में अलमस्त फकीर, उनके साथ कुबेर हैं, मेरे साथ कबीर। तो यही चीजें हैं जो हमें आगे ले जाती हैं कि इट्स ओके, कमियां होती हैं लाइफ में हर चीज की। कई बारी वो you feel you're deprived of something, but at the same time, don't forget आपके साथ कौन है। Your God is with you, your Guru is with you, and he's witnessing everything. So उसके बाद उसके बाद हम ये पढ़ते हैं, The reason you are able to hear my voice and write all this is because your heart is full of love for me. तो बाबा क्या कह रहे हैं विद्या जी को, जो पहले नीलू थी, अरे तुम्हें मेरी आवाज कैसे सुन रही है बताओ, और तुम ये कैसे लिख पा रही हो? You know why? Because I reside in your heart and your heart is full of love for me. तो जब आपके हृदय में वो प्यार भर जाता है ना, फिर वो जो अनहद नाद है, जो ईश्वर की आवाज है, वो भी सुनाई देने लगती है। तो बाबा कहते हैं, the reason you're able to hear my voice and write all this because your heart is full of love for me and I'm in your heart. I dwell in your heart. तो असली तो आसन सिंहासन ईश्वर का हमारे हृदय में ही है। तो हृदय को हमें निर्मल रखना चाहिए। वही होता है शब्द बानी स्वाध्याय। कहते हैं सत्संग सिमरन स्वाध्याय। गुरुजी हमें सत्संग भी कराते हैं, सिमरन भी करवाते हैं, और ये जो है ये भी तो जैसे कहते हैं ना, जो पहले चीजें नहीं हुई अब होने लगी। टाइम के साथ साथ जिस चीज की जरूरत है गुरुजी अपने आप ही करवा लेते हैं। ये है स्वाध्याय। तो कई बारी हमारे मन में ये आ जाता है, बहुत लोग ऐसा सोचते भी हैं, वो पूछते भी हैं कि आप कैसे पढ़ रहे हो, बाकी ये तो सिर्फ गुरुजी का पढ़ना चाहिए। तो वही तो बात है ना, लिमिटेड, इसे कहते हैं लिमिटेड थॉट्स, लिमिटेड परसेप्शन, लिमिटेड इंटेलिजेंस। अपने आप को इस दायरे से बाहर निकालिए। डिवाइन लाइट इज वन, divine light is one. There is so much to learn from all the perfect masters. There is so much to learn from everyone. इसीलिए तो हम गीता भी पढ़ते हैं कृष्ण जी का उस युग के बारे में, फिर हम राम जी का पढ़ते हैं। इसी तरह से हमें स्वाध्याय करना चाहिए। जितने भी परफेक्ट मास्टर्स हुए हैं, जैसे जैसे जिसको हो, वो उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बिकॉज नॉलेज इज एंडलेस। तो इन चीजों से कंपैशन भी मन में आता है। स्वाध्याय करने से पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं। तो इसी करके ये शुरू हुआ है। जिस तरह से भी गुरुजी ने जैसे सेवा का मौका जिन जिनको दिया, I still wonder, why I'm reading, because I'm really not good at reading, and seriously, and thanks for bearing me. So the reason you are able to hear my voice and write all this is because your heart is full of love for me, and I'm in your heart. You will never feel unloved because you're full of me. तुम्हें कभी भी नहीं लगेगा तुम्हें प्यार नहीं मिल रहा, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो मैं ही तो भरा हुआ, and I'm in you. अरे मैं तुम में हूँ. This unity will quench your thirst to know the truth, which is eternal search for all beings, and this can be found only through love. तो कहते ये मिलन क्या है? यही है ना कि जब प्यास होती है, नहीं मुझे और जानना है, इस ट्रूथ को जानना है, यही तो इटर्नल सर्च है। और एट द एंड ऑफ द डे हम करने क्या आए हैं दुनिया में? जितना हमें पता था उसके और पन्ने आगे बढ़ाने के लिए दोबारा से जन्म मिला, और इसी स्वाध्याय के माध्यम से भी वो जानने को मिल रहा है। पर एक ही चीज है, प्यार हो तो सब कुछ मिलता है। Love has a quality to burn and absorb all the desires and limiting factors connected to the material world. तो प्यार को इतनी बड़ी सुप्रीम शक्ति माना गया है। कहते इसमें वो क्वालिटी है, वो पावर है कि वो बर्न कर सकता है उन सारी जो हमारी ऐसी इच्छाएं होते हैं, उनको जला सकता है, उनको भस्म कर सकता है, जो हमें जोड़े रखती हैं इस मटेरियल वर्ल्ड से। लव मी टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज, मुझे प्यार करो, एंड आई शैल टेक केयर ऑफ यू, और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, until you realize the truth and find real love and be in it forever. जब तक तुम्हें रियलाइजेशन नहीं होती वो असली सच्चाई के बारे में, रियल लव के बारे में, जो हमेशा रहता है। So why do those who love you need to suffer? So this is all about suffering. So कहते हैं, why do those who love you need to suffer?
तो बाबा कहते हैं माई लवर्स आर वेरी डियर टू मी, मेरे भगत, मेरे जो भी है मुझे मानने वाले, वो मेरे बहुत क्लोज हैं, मेरे को बहुत प्यारे हैं वो। आई लुक आफ्टर ईच वन पर्सनली, मैं पर्सनली देखता हूँ सबको। द एक्सपीरियंसेस दे गो थ्रू आर डिजाइन्ड बाय मी इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दे एक्सपीरियंस थिंग्स दैट ब्रिंग देम क्लोजर टू मी। ये जो भी वो भुगत रहे हैं ना, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी है, अरे ये मेरी द्वारा ही डिजाइन किया गया है ताकि ताकि मैं उनको अपने करीब और ला सकूं। सो बाबा बहुत is always laid stress on suffering, suffering, suffering. It is not the outer and visible experiences that matter in order to decide if one is on the path or has strayed away from it. कहते हैं ये जो बाहरी का वो जो विजिबल होता है ना, सिर्फ उसी से डिसाइड नहीं कर सकते हो कि तुम उस पाथ पे हो या तुम उसमें भटक गए हो। कहते देयर accumulated संस्कार्स over several times have to be dissolved and sufferings are the shortcuts to do this। तो वो तो है ही है, जब इतने इंसान ने जन्म लिए होते हैं तो कुछ ना कुछ तो वो अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है। वो उससे क्या होता है, संस्कार हमारे इकट्ठे हो जाते हैं जो बहुत बहुत जन्मों से होते हैं, तो उनको खत्म भी तो करना है ना, डिसॉल्व भी तो करना है ना। तो कहते हैं उसको डिसॉल्व करने के लिए क्या है, सफरिंग इज द शॉर्टकट। तो सफरिंग्स आर द ब्लेसिंग्स। तो जिनको भगवान ने अपने करीब लाना होता है उनको सफरिंग्स बहुत मिलती हैं। वो हमने मीरा जी के जीवन में भी देखा, गुरु कबीर जी के जीवन में देखा, हमने रविदास जी के जीवन में देखा, तुकाराम जी के जीवन में देखा। आप जितने भी ऐसे मास्टर्स, यहाँ परफेक्ट मास्टर्स की जिंदगी देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि वो बहुत बहुत उन्होंने सफरिंग अपने ऊपर ली हो या ईश्वर ने उनके ऊपर करवाई है सफरिंग। आई एम श्योर दैट ईच वन गेट्स ओनली एज मच एज दे कैन हैंडल। पर मैं ये भी देखता हूँ उतना ही ले सके जितना वो हैंडल कर सके। बट you know, it's also true sometimes we think no, it's too much for me to handle. I think you know, it's too much. It's like you know, I can't bear whatever God is you know, bestowing on me, maybe as a part of blessing or a you know, suffering. It's too much for me to handle. I know the capacity and pulse of each one of them. पर बाबा कहते हैं मुझे पता है, मैंने बस मतलब मुझे हर किसी का पता है कौन कितना ले सकता है। The suffering seen by the outside world are indeed blessings that are helping them to unwind। जो sufferings बाहर की दुनिया से तुम्हें नजर आती है ना, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये ब्लेसिंग्स हैं ताकि तुम्हारा ये जो लेना देना है वो सब खत्म हो। दिस अनवाइंडिंग ऑफ दिस संस्कार टेक्स years। कहते हैं तुम्हें पता है ये संस्कार खत्म करने के लिए कई बार सालों साल लग जाते हैं, एंड समटाइम्स मेनी लाइफ टाइम्स, कई बार कितने जन्म लग जाते हैं टू अटेन प्योरिटी ऑफ द सोल। सो नो वन कैन मर्ज विद अस, so no one soul, so one can merge with a super soul। Sorry, I'll read that again. This unwinding of their sanskars take years and sometimes many lifetimes to attain purity of soul, so one can merge with the supreme soul। तो ये जो unwinding होती है संस्कार्स की, ये सालों साल लग जाते हैं, जन्म पे जन्म भी लग जाते हैं। पर ये मेन इसका मकसद क्या होता है, ताकि वो आत्मा शुद्ध हो सके अपने सुप्रीम सोल से मिलने से पहले, मर्ज करने से पहले। तो वो सफरिंग के द्वारा ही होता है, सारा भुगतान खत्म करना होता है। आई डोंट प्रोवाइड अ प्रॉमिस एनी प्लेजर्स ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। कहते हैं दुनियावी चीजों की मैं आपको प्रॉमिस नहीं करता हूँ। जैसे गुरुजी नहीं बोलते हैं सब दुनियावी चीजा मंगन आंदे हैं, असली चीज तब मंगदा नहीं कर। गुरुजी ने सबको सब दिया, जितने जैसी जैसी चीजें मांगी वो दिया। तो शायद परमात्मा का कुछ होगा कि जब मैं आऊंगा तो मैं इतना भरपूर भर के दूंगा। बट वो मांगने का मतलब है और जन्म लेना। तभी वो कहते हैं कि मंगो नहीं मनो। पर इंसान फिर वही सोचता है कि अब इनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। फिर बात तो वही है, जो आप मांगेंगे वो देंगे तो सही। बट जिसको इस दुनियावी चक्र से निकलना होता है ना, फिर वो सफरिंग को अपनाता है। वो किसी चीज की कंप्लेन नहीं करता, बट वो स्ट्रेंथ मांगता है अपने परमात्मा से। सो मेहर बाबा जी भी कहते हैं आई डोंट प्रोवाइड और प्रॉमिस एनी प्लेजर्स ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। मेरे से मटेरियल चीजों की चीजें मत मांगो, वो मैं तुम्हें देने नहीं आया हूं ना। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं वो दूंगा। आई प्रॉमिस स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। बस ये है असली चीज, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। आई प्रॉमिस अवेकनिंग ऑफ द सोल टू रियलिटी। ये मैं चीजें आपको प्रॉमिस करता हूँ। स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट यही तो है असली चीज जिसके लिए हम आए हैं, और द अवेकनिंग ऑफ द सोल, तो हम आत्मा को और ऊपर जागृत करने के लिए, उसकी और उन्नति के लिए, यही है असली चीज।
तो अगर इंसान इन चीजों की मांग रखे या अपने मन में या जैसे भी है, वो असली चीज है. Some may experience their problems are ending after coming in contact with me. कहते कई लोग सोचते हैं उनकी प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है मेरे कंटेक्ट में आने में, and life is becoming much simpler, कि लाइफ और सिंपल हो रही है. This is not done by me. महाबा कहती है मैं नहीं कर रहा हूं. I only unlock the binding of sanskars as per the eligibility of the soul, and whatever happens to the person after that is the result of the unwinding process as per past karma. कहते ये जो है ना अनलॉकिंग जो बाइंडिंग ऑफ संस्कार की है, ये उस आत्मा की अपनी तरक्की के ऊपर होती है. एंड व्हाटएवर हैपेंस टू द पर्सन आफ्टर दैट, उसके बाद जो भी होता है वो उसके पास कर्मा पे भी निर्भर करता है. बाबा बहुत हम्बल तरीके से कहते हैं आई डोंट परफॉर्म एनी मिरेकल्स, आई ओनली वर्क विद यू थ्रू योर लाइफ टू ब्रिंग ऑल दिस सिचुएशंस एंड एक्सपीरियंसेस दैट कैन गिव यू फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज. कहते मैं उस तरह से मिरेकल्स नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं तुम्हारी आत्मा के ऊपर उस तरह से काम करता हूँ ताकि हाँ उस तरह की सिचुएशंस और एक्सपीरियंस के द्वारा आप तुम्हें ले जाके ताकि तुम ये बंधन से बाहर निकलो. आई वांट टू गिव यू फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज. इन ह्यूमन फॉर्म आई हैव सफर्ड. बाबा कहते मैंने भी तो ह्यूमन चोला लिया, मैंने भी तो सफरिंग की, एंड आई एम स्टिल सफरिंग फॉर द वर्ल्ड क्रिएटेड बाय मी. अरे मैं तो अभी भी सफर कर रहा हूँ जो दुनिया मेरे द्वारा बनाई गई है. व्हेन पीपल कैरी डीप सॉरोज एंड हैवी हार्ट्स फॉर द impermanent aspects of life, my lovers who are close to me are purified at greater intensity in the flame of love, but to the outside world it appears as suffering. कहते जो मुझे सच्चे मन से प्यार करते हैं ना, एक्चुअली मैं उनको प्योरीफाई कर रहा होता हूँ उस फ्लेम ऑफ लव से, पर वो बाहरी दुनिया के लिए क्या है वो सोचते नहीं यार ये तो बंदा बड़ा सफर कर रहा है. उनको ये थोड़ी पता है परमात्मा उनके ऊपर कैसे काम कर रहा है. वो काम कर रहे हैं, उसको और प्योरीफाई कर रहे हैं, उसको उस प्यार के आग से निकाल रहे हैं. बट वो दुनियावी लैंग्वेज में लोग उसको सफरिंग का नाम ले लेते हैं. Only the courageous and the ones who love me deeply can stay with me till the end, and the others who come in contact with me may leave me temporarily. कहते हैं जैसे बाबा ने हमेशा कहा है, मेरे बाबा जी ने, spiritualism is this path is full of, the path to spiritualism is merciless actually. तो ये पाथ आसान नहीं है. तो बाबा कहते हैं जिनमें हिम्मत है ना, करेज है रब को उस तरह से प्यार करने की और अपना बलिदान देने की भी, वो ही मेरे साथ अंत तक रह सकते हैं. बाकी तो ठीक है जिदा गुरु जी ने कहना है आंदे है मगरों लथ जाते ने, मतलब जैसे गुरु जी ने इदा कहना कईयों मैं जल्दी जल्दी दे देना, मैं कहना मेरा खेड़ा छड्डन, क्योंकि रब मतलब गुरु जी कहते हैं मैं भी बोर हो जाना है, इन्होंने मैं जल्दी देना है, मेरा खेड़ा छड्डन आ नहीं ना मेरे को. और प्रोबेबली जिसको वो कुछ भी नहीं देते वो अंत तक गुरु जी के साथ रहते हैं, अंत तक. और हम सोचते हैं फलाने फलाने को बहुत कुछ मिल गया, प्रोबेबली शायद वो करीब हैं गुरु जी से. ऐसा कुछ नहीं है. जो भगत कुछ नहीं मांगता अपने परमात्मा से, पेन भी सह रहा है, सब चीजों से निकल रहा है, वो फिर अंत तक रहता है. Because everybody is going through something or the other. We don't know, what kind of things people are going through. So we should not judge anyone. ये Guruji knows the best. So वही मेहर बाबा जी कहते हैं मेरे साथ अंत तक रहता है. And बाकी तो बस फिर temporarily रहते हैं. Those who come to me even once cannot leave me permanently as I'm holding on to them. जो मेरे पास एक बारी भी आ जाए तो मैं उनका साथ नहीं छोड़ता, मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ. Those who come to me even once cannot leave me permanently as I'm holding on to them. I have the strings of all the kites in my hand. अरे मैंने ही तो वो strings जो भी है वो संभाल के रखी है अपने हाथ में. I loosen it for them to fly high. और फिर ये मेरे ऊपर है मैं कितनी वो उसकी डोर को छोड़ूं ताकि वो और ऊपर उड़े. And as and when I want, ये सब मेरी मर्जी के ऊपर है. I have the strings of all the kites in my hand. I loosen it for them to fly high and as and when I want. ये मेरे ऊपर है कब और कैसे करना है. I can tighten the string and control their flight. अरे मेरे हाथ के ऊपर है, चाहे तो मैं डोर को कस के पकड़ लूं, चाहे तो मैं उसको ढील दे दूं, ये मेरे ऊपर है. So don't worry, be assured that I'm in control of the lives of my lovers. चिंता मत करो, तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा होता है, ऊपर कुछ हो जाए, नीचे कुछ हो जाए, don't worry, I'm there, I'm witnessing everything, it's up to me. So don't worry, be assured that I'm in control of the lives of my lovers. मैं ही सब कुछ कंट्रोल करता हूँ. Know also that those who suffer are blessed and suffer spiritual progress. जो सफर करते हैं वो blessed होते हैं और
वो अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन के लिए तैयार होते हैं। एंड सच सफरिंग इज नॉट अवेलेबल टू एवरीवन, पर याद रखना। सो तभी बाबा कहते हैं, बी कंसिडर योरसेल्फ सो फॉर्चुनेट दैट you know that I'm making you suffer because you know in a way I'm drawing you closer to me. So ये जो सफरिंग है ना, हर किसी के लिए नहीं अवेलेबल होती। In the end, and through the suffering you will experience eternal happiness and ecstasy that is unlimited and permanent. कहते आखिर में तुम्हें पता चलेगा, eventually पता चलेगा इस सफरिंग के द्वारा कि जो तुमने ये एक्सपीरियंस की ना सफरिंग, उसके बाद में तुम्हें क्या मिलेगा? eternal happiness, ना खत्म होने वाली खुशी, इतना blissful moment, ecstasy unlimited and permanent, उसकी कोई limitations ही नहीं है और हमेशा के लिए वो खुशी ऐसी होती है। So that means those who are suffering in life, just remember God is with you and God is deliberately making you suffer because God is just, you know, seeing everything, observing everything. God just wants to give you the eternal freedom. इस bondage से निकलवाना चाहता है, पर हमें यही होता ना, why me? So now be fortunate, say, okay, fine, God, you chose me for the suffering. And because you want to just, you are interested in my eternal freedom. You don't want me to come again and again and again and again. So thank you, God, for the suffering. So at the most, what we can ask for, God, give me strength so that I can pass through the suffering, you know, with that, with that courage, with that bravery, and have mercy on me, God. Just give me that, fill my heart with compassion and love and give me strength. And even if I fall, just help me to rise. So यही हम मांग सकते हैं भगवान से। So किसी को हम उस तरह से मत जज करें कि कौन क्या सफर कर रहा है। हाँ, कई लोग जो सफर करते हैं, जिदा गुरु जी कहते हैं रब नूं गालां भी कढ देने, ये गलत बात है। आपको शुक्र करना चाहिए, और क्योंकि सफरिंग कोई खास लोगों को ही ईश्वर देते हैं। सो उस तरह से अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, यू नो, रेजिलियंस पावर रखनी चाहिए। इसी के लिए शब्द, बानी, पाठ, स्वाध्याय, इससे हिम्मत बनती है। बस लाइफ का नाम यही है, चलते रहना। और किसी भी कहते, और ये भी होता है, कहते जिंदगी की राहों में ऐसा अक्सर होता है, फैसला जो मुश्किल हो वही बेहतर होता है। कई बार ऐसा होता है ना, लाइफ में हमें बहुत मुश्किल फैसले भी करने पड़ते हैं, बट इफ यू थिंक इट इज गुड फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ योर सोल, then you must just go ahead and do it. So यही है, कहते हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। बस यही है जिंदगी, चलते रहना है। You can't stop. This is what life is all about, because we all know death is inevitable anyway, and everyone has to die. So जो life भगवान ने दी है, make the best out of it. Even when you are in deep pain, acute pain, severe pain, just keep on moving, moving, moving. Don't give up, because ये भगवान हमें देख रहे हो deliberately। भगवान बस चुपचाप पीछे हो जाते हैं और हमें deliberately सफर भी करवाते हैं, because he knows how much we can handle, and अंत में फिर वो ही गुरु जी के साथ रहता है जो इन चीजों को पार कर लेता है। बाकी तो अगर उन चीजों में ही डूब के रहना है, अगर हमने उन चीजों में ही रहना है, अपनी मटेरियलिस्टिक चीजों में, देन यू कांट प्रोग्रेस। तो हमें ये देखना है, हमें अपनी शारीरिक जर्नी या मटेरियलिज्म वाली जर्नी चाहिए कि आत्मिक जर्नी चाहिए। So यही eternal truth है। हम जितना मर्जी इसे हाइड कर लें, even if we don't pay attention to these things, but these are the real things, because ये भगवान खुद लाइट, डिवाइन लाइट खुद ये बताते हैं, खुद इन किताबों के द्वारा। आगे है, how can one attain this state of awareness and self love? कहते हैं आप उस तरह से जो स्टेट है ना अवेयरनेस की और वो प्यार की, वो आप कैसे जान सकते हैं? Grace is the answer. मेहर। ग्रेस इज ऑफन मिसइंटरप्रेटेड एंड मिसअंडरस्टूड। कहते लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता है, उसको मिसअंडरस्टूड किया जाता है। सम पीपल irresponsibly say everything will be taken care of by God while they sit idle. वो सोचते हैं ठीक है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा है, गुरुजी हैं, अपने आप देख लेंगे, और आप बस इस तरह से बैठ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये दिस इज नॉट द राइट अप्रोच, दैट्स नॉट द राइट वे कि तुम इररिस्पॉन्सिबल हो जाओ और बैठ जाओ, नहीं नहीं रब है, गुरुजी है। बिकॉज बहुत लोग करते हैं, गुरुजी आप पे देख लेंगे। ऐसे नहीं करना चाहिए। अपना जिंदगी में एफर्ट करें, तो क्या हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए तो क्या गुरुजी नहीं देख रहे हैं? सो साईं बाबा जी ने भी बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था फकीर में। कहते वी से ओ आई वाज सेव्ड फ्रॉम द एक्सीडेंट, गॉड हैंड वाज ऑन माय हेड। तो बाबा सेज व्हाट अबाउट द अदर हु मेट विद एन एक्सीडेंट? उनके ऊपर क्या हाथ नहीं था?
So very practical book. Fakir is very practical, and then after that is the journey continues. मैंने पहले भी बताया था, it's written by Rusmin Barucha, but ये सारा in the form of fiction. But Baba has, depicted the stark realities of life in that book, Fakir, and the journey continues. So ये है मेहर का मतलब ये नहीं होता है आप कुछ ना करें, आप बेले होके बैठ जाएं, and you procrastinate, and it doesn't happen like that. Grace calls for relentless efforts. मेहर का मतलब है अपने कर्म करते रहो बगैर रुके, अपना बेस्ट दो, rather sincerely pursuing self knowledge and self awareness. Sincerity से अपना वो pursue करते रहो, उस रास्ते लगे रहो. God never makes mistakes and never gives wisdom to those who do not value and deserve it. कहते ईश्वर कभी गलतियां नहीं करता, ये तो हम इंसान हैं जो करते हैं. God never makes mistake and never gives wisdom to those who do not value and deserve it. तो उनको समझदारी भी नहीं देता जिनको वैल्यू नहीं है और जो डिजर्व नहीं करते हैं. That means God's decisions are perfect. God knows what to do, when to do, and with whom to do. तो ईश्वर सब कुछ ठीक करते हैं because ईश्वर ही तो perfect है. Grace is a blessing from the master who is the face of God. तो मेहर समझो क्या है, ये एक blessing है, एक master जो परमात्मा का रूप है, वो परमात्मा ही तो है master जो आपको blessing देते हैं. Grace can move mountains. इतनी बड़ी शक्ति है मेहर में, वो तो पहाड़ को भी हिला दे. So pray for grace and nothing else. साईं बाबा जी भी हमेशा कहते हैं, rather than seeking for blessings, ask for मेहर. Grace मांगनी चाहिए गुरु जी से. Grace, गुरु जी, give me your grace. With the grace of a perfect master or God himself, one can swim in the ocean with utmost ease, and the waves of illusion will be lifted one by one in the most surprising ways. कहते जब परफेक्ट मास्टर आपके परमात्मा की या गुरु जी की आपको मेहर मिल जाती है ना, फिर आप पार कर सकते हो उस ओशन को बड़े आराम से, क्योंकि वो जो इल्यूजन का पर्दा है वो उतर जाता है, वो लिफ्ट हो जाता है एक के बाद बहुत अलग अलग तरीके से, सरप्राइजिंग वे से वो हमें फिर पता लगने लगता है. इन द नेम ऑफ ग्रेस वन कैन नॉट बिकम डिपेंडेंट ऑन गॉड आउट ऑफ लेजीनेस. आप कहीं जी गुरु जी सब कुछ कर देंगे, मेरा परमात्मा सब कुछ कर देंगे, मेरे मेहर बाबा जी सब कुछ कर देंगे, आप कुछ मत करो, हर चीजों पे डिपेंडेंट हो भगवान पे, आउट ऑफ लेजीनेस, दैट इज wrong. Even I don't this attitude, Guruji has never made us go about this attitude कि नहीं कोई बात नहीं गुरुजी देख लेंगे, ये नहीं है. तो फिर गुरुजी ने हमें चोला क्यों दिया, गुरुजी ने हमें दिमाग क्यों दिया, यही कि कुछ खुद भी तो करो. ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕੋ. ये नहीं हर चीज भगवान पे करो और अपना भी दिमाग लड़ाना चाहिए. और फिर ठीक है, कर्म अपने करो, अपनी तरफ से बेस्ट शॉट दो, और उसका जो रिजल्ट है उन पे आप वो छोड़ दो. तो लेजीनेस के बहाने हम कहें नहीं, he knows the best, he will do everything. So then why has he sent you to the world, for what? Not to just derive the laziness and have the laid back attitude. So procrastination and absolute surrender have to be separated and clearly understood. कहते surrender कुछ और होता है, procrastination कुछ और होती है. Procrastination क्या है? You keep on delaying things, keep on dilly-dallying. Okay, fine, I'm going to do tomorrow, I'm going to do day after. So आप खुद ही नहीं कुछ कर पाते हो. और surrender तो कुछ और होता है ना. सरेंडर का मतलब ये कभी भी नहीं हुआ कि आप कुछ ना करो तो आपने सरेंडर कर दिया. नहीं, मैंने सरेंडर कर दिया. फॉर एग्जांपल वी कैन गिव एग्जांपल ऑफ अ स्टूडेंट who says, oh, I've surrendered to Guruji, he will do my exam. That's a very wrong approach. A student should think, no, I'm going to study, I'm going to give my best. So if I come out with flying colors, definitely I'll be more than happy. And even if I don't, then I'm going to work harder next time more. But yes, what we can ask from Guruji, okay, Guruji, give me more strength कि मेरे में इस तरह की उस तरह की अपनी मेहर कीजिए कि जो मुझे चीजें नहीं भी समझ आ रही, आपकी मेहर से समझ आने लगे. So but no, I need to toil, I need to burn the midnight oil because my exams are around the corner, so I need to study. So you cannot procrastinate. और आप सरेंडर ये नहीं होता. सरेंडर का मतलब है आपने अपना कर्म अच्छे से किया, अब उसका फल आपको क्या मिले. अच्छा है तो उसमें भी खुश रहो, नहीं अच्छा मिला तब भी खुश रहो. That is the real surrender. So उसमें आप कभी कंप्लेन नहीं करते हैं. तो कहते हैं आप ये मतलब तो समझो, इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करो. Don't mix it up, don't mingle it. Procrastination और surrender को लेके. When one prays for grace, the prayer should
necessarily be done with absolute integrity, love and longing for unity with the Almighty. कहते जब आप प्रार्थना भी करते हो ना मेहर के लिए, सो वो उस तरह से होनी चाहिए, पूरी इंटीग्रिटी के साथ, प्यार के साथ, वो इतनी वो अंदर से शुद्धता के साथ होनी चाहिए कि आप सिर्फ तड़पते हो परमात्मा से मिलने के लिए, यूनिटी के लिए, नॉट सिर्फ अपनी मांगों के लिए, और जस्ट एज अ रूटीन. Prayers are not like this. Even if if you can't sit for a long time, but then when you do prayer, when you sit in prayers, then it should be really, really intense, as if you've never prayed like this before. So इस तरह से परमात्मा से प्रेयर होनी चाहिए कि यस, यही पल, यही मेरे लिए ये पल है. तो उसको उस तरह से पूरी तरह से अंदर से आत्मा से वो प्रेयर होनी चाहिए. सो दिखावे की नहीं होनी चाहिए, या फिर बिकॉज वी नॉट हियर टू प्लीज गॉड. सो हमें वो अंदर अंदर से आत्मा से रियल लॉन्गिंग के लिए प्रे करनी चाहिए. Awareness can be practiced with one's own efforts only to some extent, but the absolute effortless awareness of one's godhood is possible only by the grace of perfect master of God himself. वो तो है ही है. मेहर के बगैर कुछ नहीं हो सकता. जब सच्ची मेहर मिल जाती है ना परमात्मा की, तो फिर वो सहज भाव से अवेयरनेस आने लगती है. इसीलिए कहते हैं, साईं बाबा जी हमेशा कहते हैं, मेहर मांगा करो, मेहर मांगा करो, मेहर मांगा करो. तो गुरुजी ने भी तो यही कहा ना, अपने कर्म बख्शवा लो. तो वो कर्म कैसे बख्शवाए जाते हैं? जब मेहर हो जाती है रब दी, जब मेहर हो जाए. When one comes face to face with God through grace, one comes in contact with the purest form of God's love in one's heart. तो जब face to face उस तरह का जब एक्सपीरियंस होता है ना उसके मेहर से, फिर वो जो purest form of God's love है ना, फिर वो your heart is filled with that love. That's the power of the love which is full of mercy. After this, the need to find love outside or to get acknowledgement from the world reduces as one feels fulfilled and complete within oneself. फिर ये जो बाहर वाला प्यार होता है ना, जो आप बाहर ढूंढते हो, या उस प्यार को आपको एक्नॉलेजमेंट चाहिए, वो बंद हो जाता है, वो कम हो जाता है. क्योंकि ये जो रूहानी प्यार है ना, ये आपको कंप्लीटली भर लेता है अंदर से. एंड द सर्च इज ओवर. अभी तो हम कहते हैं जो गुरुजी की शरण में आ गए, यो सर्च इज ओवर, नाउ व्हाट मोर यू वांट. जब आप डायरेक्टली अवतार की शरण में आ जाते हैं ना, the divine light himself, फिर your search is over. So फिर आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वैसे ही हमारी आत्मा भटकती होती फिर जाके गुरुजी के चरणों में पहुंचे. जैसे गुरुजी कहते हैं, कोई एवं नहीं आ जाता, जदों आत्मा रिफाइन होती है ताही आंदी है. और आत्मा को रिफाइन तो आत्मा सफरिंग के बगैर तो हो ही नहीं सकती. दैट्स नॉट पॉसिबल. सफरिंग और परमात्मा की मेहर मिल जाए तो फिर तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है. ये होती है रिफाइनमेंट. One is now able to love everyone and everything as being love itself. फिर प्यार की परिभाषा बदल जाती है. ये फिर यूनिवर्सल लव होता है. हर किसी में हर कहीं प्यार आप पाते हैं, आपको हर कहीं वो ही नजर आता है प्यार. Such a person has so much to give that he never falls short of love. फिर वो उसके अंदर ऐसी वाइब्रेशंस, ऐसी तरंगे भर जाती, इतना प्यार भर जाता है कि वो प्यार कम होने पे नहीं आता. जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ता जाता है. Such a love can only be given when it overflows from within. तो वो प्यार कैसे बांटोगे? जब वो आप भरपूर उसमें से भर जाते हो. तो पहले वही था ना, जैसे हमने पिछली बार एग्जांपल किया था, you can't serve from the empty cup. पहले अपने आप को भरो. वो परमात्मा की मेहर से जब प्यार अंदर आ गया, फिर वो ओवरफ्लो करता है और उस प्यार की सुगंध हर जगह महकती है. And then whosoever comes, the proximity of that person is also filled with love. That is why we sometimes when we sit with some person, we feel so positive and optimistic and filled with love, because वो हर एक की अपना aura और vibrations होती हैं. Love first fills the beholders and then engulfs everyone. इस तरह से पहले देने वाले पे और साथ में, फिर बाद में सबको वो अपने उसमें भर लेता है. In order to give love, one must first find the love within oneself and then become love itself. So it's a beautiful line, beautiful sentence. प्यार देने के लिए पहले प्यार को पाए. One must find love, अंदर ही पाए प्यार को. अंदर ही है. Basically
सब कुछ अंदर ही है, हमारे हर इंसान के अंदर सब कुछ है, प्यार भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है, भगवान ने सब कुछ देके भेजा है हमें, शिव तत्व के साथ भेजा है हमें, तो वो सबके साथ ही है अंदर। उसके बाद एंड देन बिकम लव इटसेल्फ, फिर वो खुद ही प्यार बन जाता है। सो यू नो दे हैव गिवन सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन अबाउट लव। तो ये जो सीखा है ये तो यही है बस हमें, you know, love is the highest form of prayer. There is nothing bigger than love. और उसके बाद जब परमात्मा से प्यार हो जाए तो वो असली प्यार होता है, बिकॉज उसमें कोई कंडीशंस नहीं होती हैं। दैट इज सो प्योर ब्लिसफुल लव। एंड सेकेंडली, ऑलवेज आस्क फॉर मास्टर्स ग्रेस, मास्टर्स मर्सी। ग्रेस मांगनी चाहिए ईश्वर से, उस ग्रेस में सब कुछ आ जाता है। और इस तरह के बहुत प्यारे 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 लेसन हमने आज सीखे हैं। हमने सफरिंग के बारे में भी जाना कि सफरिंग जिसको भी आती है जिंदगी में, अपने आप को बहुत खुश नसीब समझिए, परमात्मा आपको और नजदीक ला रहे हैं रोशनी की तरफ। सारे बॉन्डेजेस खत्म करने जा रहे हैं परमात्मा, इसीलिए हमें वो सफरिंग दी जाती है। तो सफरिंग में जो मांगने वाली चीज वो ही है स्ट्रेंथ। और सफरिंग में भी अगर हमारी पॉजिटिविटी बनी रहे तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। So thank you so very much, Guruji, Meher Babaji, and Vidya ji. Thank you, Ekta ji, Shilpi ji.